نارسسسٹ کا کتنا بڑا ٹریٹ ہے عدم برداشت میں آپ سے جانوں گی، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ جو ہے وہ کافی دیر سے موجود ہیں، یایا خان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مدیہ دیکھیں میں تو آپ صبر کرتا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ میرا نام نا یایا خان نہیں، میرا نام یایا حمید ہے. یایا حمید صاحب سوری معاف کیجیے گا. ہاں وہ جات مجھے بہت پرانا جانتے ہیں، نوشین بھی جانتی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ نوشین جو ہے دوبارہ ٹی وی پہ اپیئر ہونا شروع کر دیا، آپ ان کو لے آئی ہیں. اور سب سے اچھی بات ہے نوشین کی بہت تحمل سے بڑی طریقے سمجھاتی ہے بات کو. اچھا میں بجاج بھائی کی بات سے اس بات شروع کروں گا، بجاج کی بات سے، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ حقیقت ہے کہ لوگ آپ کے باس ہوتے ہیں، آپ کے فادر یا بھی ہوتے ہیں، کچھ مدر بھی ڈکٹیٹرز ہوتی ہیں، وہ اس وقت تک تو برداشت کرتے ہیں جب آپ کے انڈر ہوتے ہیں، لیکن جہاں آپ اپنی پوزیشن گین کرتے ہیں نا تو آپ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں. لیکن مدیہ میرا سوال ایک ڈفرینٹ ہے بجاج بھائی سے اور نوشین سے اسپیشلی. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے بیونڈ کنٹرول ہوتی ہیں. اب آپ اف آر گوئنگ ان اے ٹریفک، ہمارا ٹریفک ہیزارڈ ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پیچھے سے اگر میں سگنل فالو کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے اگر پیچھے سے کوئی آ کے مجھے موٹی سی گالی دے اور پھر میں اس پیئر پریشر میں آنے کے بعد وہ کام میں خود بھی کرنے لگتا ہوں. دیٹ از مائی بیونڈ کنٹرول. کیونکہ اگر آپ اب آپ ایک موب نکل رہا ہے سگنل توڑتے ہوئے تو اس میں آپ شامل ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو غصہ بھی آتا ہے، پھر آپ اریٹیٹ بھی ہوتے ہیں، آپ کا مزاج وہ نہیں ہوتا ہے. ہاؤ ٹو کنٹرول اینڈ ہاؤ ٹو ٹیم یور اینگر لائک دس، میرا سوال ہے. صحیح جی، اینگر کو ٹیم کرنا یہ بھی بڑا آف کورس اٹس پارٹ آف دی ٹاپک. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ ہے کہ آپ جب بہت آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہو گیا تو آپ اس پوری بحث کو اینڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وی ایگری آن دا ڈس ایگریمنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جملہ ہے کہ دونوں کے لیے ایک باعزت بری ہو گئے آپ نا. آپ نے کہا اوکے ایٹ لیسٹ وی ایگری ٹو ڈس ایگری، چلیں کم از کم ہم اپنے اختلاف رائے سے جو ہے وہ ہم دونوں اس بات پہ ایگری کرتے ہیں. تو اب جو ان کا جملہ ہے کہ آپ نارسسسٹ جو ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، اور وہ اگر بیکاز یہ ان کا ٹریٹ بھی ہے نا کہ وہ ان میں بھی برداشت کی بالکل ایسے ہی کمی ہوتی ہے. جی تو میں یہ کہوں گی کہ پورے پاکستان میں کون نارسسسٹ نہیں ہے نا، میرا سوال ہے. اور لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹرم بالکل کو نہیں آئی ہے، بلکہ اگر آپ اس کے ٹریٹ دیکھیں تو آپ آس پاس بھرے پڑے لوگ آپ ہر ایک میں آئیڈینٹیفائی کر لیں گے. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی حد تک ہر کوئی ہے. اور یہ جو ہے کچھ علاقوں کا آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ کچھ علاقوں کا ٹریڈ مارک ہے کہ ہم سے زیادہ خوبصورت کون ہے، ہم سے زیادہ بہادر کون ہے. انہوں نے اپنے اپنے لوگوز بنائے ہوئے. ٹھیک ہے، اور وہ اسی پہ اپنے ٹرائبل اقدار کہہ لیں یا ٹرائبل نہیں بھی ہے تو سٹیز کے حساب سے بھی بنائے. ٹرائبل فیوڈلز، جی مطلب ہر بندے کو کوئی چیز چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کر سکے کہ وہ دوسرے سے بہتر ہے. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایکویلٹی اور یہ سب جب پریویل کرنے کا کہتے ہیں تو آپ ایک نظر یورپ پہ ڈالیں، جس کو ہم کہتے تو ہیں کہ بھائی یہ اس طرح سے ہے، مگر اس وقت اگر فرض کیجئے کہ پسے ہوئے لوگوں کو اور جو لوگ انتہائی مصیبت میں ہیں ان کا سب سے زیادہ ساتھ کون دے رہا ہے تو یورپ. سب سے زیادہ ریلیز کہاں نکل رہی ہیں؟ یورپ. تو کسی جگہ پر آپ کو عدم برداشت ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، اب ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اتنا ظلم ہو رہا ہے، رائٹ؟ کتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے علاقے میں، غزہ کے لوگوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. اب آپ یہ بتائیے وہاں پر تو عدم برداشت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اب یہ جو عدم برداشت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایموشن ہمارے اندر ڈالا ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کی بھی کہیں نہ کہیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ٹالریٹ کرتے جائیں گے کسی کو، آپ کہیں کہ چلے ٹھیک ہے کوئی نارملائز کر دیں گے. ہم نارملائز کر رہے ہیں. میرے ساتھ کالر موجود ہے اسما. السلام علیکم جی. السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے. اسما کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا بھی آج آپ کے گیسٹ بھی بہت اچھے بلائے ہیں اور موضوع بھی اتنا اچھا ہے کہ یعنی کہ ٹی وی کے سامنے سے ایک منٹ بھی اٹھنے کو دل نہیں کرتا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ آبزرویشن کیا، میرے پہ تو جو میری اپنی بات ہے اگر آپ سنیں گی تو آپ چاروں فرید آبادی بڑی ہنس رہی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں مجھے. یہ سمجھیں گی کہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں آبزرویشن کیا. میں آبزرویشن بھی ہوں اور میں آنسر بھی ہوں ان تمام باتوں کا. میری فرسٹ میرج ہوئی تھی جو کہ بچے نہیں تھے تو نو ڈاؤٹ کہ پھر ختم ہو گئی تھی میری شادی. پھر جب میں نے اس وقت مجھے یہ تھا کہ نہیں میں کوئی بچہ اڈاپٹ کر لوں، نہیں میں کچھ یوں کر لوں، گھر میں سناٹا ہے اور یہ ہے وہ ہے، بہت پرابلمز ہوتی تھی مجھے.
सेकेंडली जब मेरी सेकंड मैरिज हुई तो मैंने ये रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चों वालों से शादी करो ताकि मेरे घर में रौनक हो जाए। तो मेरे 2 बच्चों वाले से शादी करी जो 15 और 16 साल की एज के हैं। खैर मैं शादी होके आ गई। मेरे हस्बैंड बहुत नाइस हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे खुद से तो बच्चे नहीं है, लेकिन अब वो बच्चे मेरे साथ रहते हैं माशाल्लाह, और आई लव देम। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ये जो तमाम रिस्पेक्टेड मेरे गेस्ट बैठे हैं ना, ये मुझे बताएंगे अब मुझे क्या प्रॉब्लम है। अब मुझे ये प्रॉब्लम है किचन गंदा क्यों है, ये इधर प्लेटें क्यों रख दी, पहले तो ऐसा नहीं होता था, साफ पड़ा रहता था। ये कमरे के अंदर इस तरह से टॉवल किसने डाल दिया, पहले तो ऐसा नहीं होता था, टॉवल अपनी जगह पे होता था। लाइक ये कि एक एक चीज में इतना ज्यादा लाइक नोट कर रही होती हूँ। और बार दफा ये कि बस ये कि तुम यहाँ बेड पे बैठ के खाना क्यों खा रहे हो जानू, बेटे को बेटा आप जाए वहीं पे खाना खाएं, आप यूं नहीं करे, आप यूं नहीं करे, यानी कि फिर बाद में इनके अब्बू अच्छा, से क्योंकि कहती मुझे हूँ, ब्रेक की तरफ जाना, तो अस्मा जी आप ये कहना चाह रही हैं कि अब आपको छोटी छोटी चीजें बॉदर कर रही हैं? आप मुझे नहीं, मैं अपने बच्चों से बहुत लव करती हूँ, नहीं लेकिन हाँ, अब वो मैं है समझ, ना, अब हाँ नहीं वो चीजें होती है कि अंदर आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद आपने कभी एड्रेस नहीं की, तभी आपको छोटी छोटी चीजें जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो और रही। वो छोटी आपके हाँ अपने बच्चे होते वो हैं, हाँ तब भी आप करती हाँ, हैं, वो क्योंकि छोटी आपके सी अंदर है ना ये हाँ, चीजें। छोटी सी मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, आप लोग कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद जनाब हम क्योंकि आज बात कर जी हम बिल्कुल ऑनर आ चुके हैं और आज मैं बिल्कुल बर्दाश्त का मुजाहिरा कि मैं कह सारे आप बात कर ले, आप बात कर ले, ब्रेक से वापस आ रहे नहीं, मतलब ये बताना चाह रहे हैं हम आपसे तो कम बातें कर रहे हैं, हम आपस में इतनी ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं इसी मौजू पर। अगर उसको रिकॉर्ड कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा जी, मैं क्योंकि ये बात ही कर रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे आसपास हैं जिनके अंदर अदम बर्दाश्त की शदीद कमी है कि आपको पता है कि आपने कोई बात उनके मिजाज के खिलाफ कर दी तो वो आप ही के गले पड़ सकती है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, यानी अचानक से देखिए बाउंड्रीज बनाएं आप ये कहें, आप तय कर लें कि हमने रिलीजन और पॉलिटिक्स और नजरियात पे बात नहीं करनी, ठीक है। आप अगर ये बाउंड्री बना लेते हैं, इन तीनों आप ऑफिस में बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए, स्कूल्स में लिखा होना चाहिए कि कोई 2 टीचर्स या कोई यहाँ पे हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में रिलीजन, पॉलिटिक्स और नजरियात पे बात नहीं क्योंकि करेगा। देखिए हमारे यहाँ यही लड़ाइयाँ इस चीज की हैं। अभी देखिए असल में इसमें मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज का खुद बड़ा हाथ होता है कि आपको लग रहा था कि आप ठीक हैं बिल्कुल, जो अगले हैं वही करप्ट हैं। और अभी पिछले दिनों हमने देखा भी कि पॉलिटिकल पार्टीज की ऐसी मैंने तो बहुत सारे दोस्तों को देखा हुआ है कि मैं उनसे कोई ऐसी बात तो पॉलिटिकल बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो पुराने दोस्त, मैं कहती हूँ भाई ये जिन लीडरों के लिए तुम लोग इतना लड़ रहे हो, गालम गलोच कर रहे हो, कल के अगर तुम लोगों को कोई पकड़ के ले गया तो लीडर कभी भी नहीं आएंगे तुम्हें बचाने के लिए। जी देखिए हम ही तुम्हारे लिए खज्जल ख्वार होंगे, रात को बैठ के डिनर साथ करते हैं, सब बैठ के हाँ साथ डिनर करे होंगे। हम ही तो इतनी आपको भी होना चाहिए कि आप किसके पीछे, आप कितना पागल होके, आप किस लेवल पे जाके किन किन लोगों से लड़ रहे हो, ये बड़ा जरूरी है कि आप। और हमारा वाकई खानदानों में लड़ाइयाँ हो गई भाई, मैंने देखा है हम लोग पॉलिटिकल इख्तलाफात पे जी अदम बर्दाश्त की कमी भाई सीखे। हाँ आप उसको जैसे मैं देखती हूँ रिलीजियस में भी, मैं कहती हूँ ठीक है जी आपको ये बेहतर लगता है क्योंकि सबके कब्र के मामलात अपने अपने हैं तो आप इनको फॉलो करें, मुझे ये लगता है कि ये बेहतर है मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, कब्र के मामलात अल्लाह जाने। बाकी इतनी अकल लोगों में आ जाए तो फिर ये जन्नत ना हो जाए। हम कम्युनिकेशन स्किल्स के वर्कशॉप्स कराते हैं, तो उसमें हम बच्चों को बताते हैं, बड़ों को भी, कि आपने इन 3 मौजूआत पे बात नहीं करनी, ठीक है। तो वो खुद पूछते हैं कि फिर क्या मौजू रह गया, तो मैंने कहा अच्छा तो इसका मतलब है कि देखिए नेटफ्लिक्स पे बात कर ले, पढ़ाई पे बात कर ले, आप ये बताएं कि इसका मतलब है कि हम प्रोग्रेसिव नहीं है, ठीक। तो मैंने उनसे कहा आप नए आइडिया पे बात करें, आप नई बिजनेस स्ट्रेटजीज पे बात करें, नए बिजनेस आइडियाज पे बात करें, आप इस चीज पे बात करें कि खुशी कैसे मिलती है। डॉक्टर नौशीन, और ये जो स्टूडेंट्स जो ये बात करें, स्टूडेंट्स की बात तो पढ़ाई में कंबाइंड स्टडीज कर लो भाई। जी बिल्कुल आपके पास। अच्छा पहले हमारी कॉलर मौजूद थी, मुझे क्योंकि जो उससे पहले अस्मा जी थी उनकी जो मसले को भी यहाँ पे एड्रेस करना है, और हमारी कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मैं उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। सारा हसन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सारा।
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छी हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मौजू बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारे माशरे में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी हो रही है वो वही है कि हम सब्र व बर्दाश्त से बहुत आगे निकल चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि तमाम सब्र व बर्दाश्त दूसरा करें। तो ये वजह है कि हम लोग जो है इससे डिमांडिंग हो चुके हैं इस वक्त माशरे में। अच्छा, मियाँ बीवी के हवाले से जो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में अपना प्रोग्राम शुरू किया, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि शुरू का जो वक्त होता है वो लड़की को बहुत ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ता है, ससुराल का माहौल, नया माहौल एडजस्ट करने के लिए, चीजों को करने के लिए, तो वो कर लेती है, ठीक है, और उसमें उसको काफी ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वो 10-15 साल गुजार चुकती है तो उसकी जो नई शख्सियत निकल के सामने आती है तो बाकी की सारी जिंदगी शोहर को बर्दाश्त करना होता है। बिल्कुल सही। और दूसरी को, और क्योंकि वो जो शख्सियत बनी है ना वो इन्होंने बनाई होती है ना। लोग से लोग कहते हैं कि आई हैव क्रिएटेड दिस मॉन्स्टर। मैं अक्सर लोगों को देखते होते बीवियों को कहते हैं कि जी ये मन से मिली है, ये मेरे मॉन्स्टर जो मैंने खुद क्रिएट किया है, क्योंकि आपने उसमें इतना कुछ भर दिया है, उसमें अपना इतनी स्क्रीमिंग, अपनी इतनी शाउटिंग, अपने इतना गुस्सा, कि फिर एक टाइम आता है कि वो सारा फिर वो वापस निकालती है। तो जो आपने वो 15 साल बाद की बात की ना, तो वो ये बड़ी तकलीफ दह सिचुएशन होती है। मदिया, ये एक नैरेटिव है जो हम अपने आप को देते हैं। हम ये नैरेटिव भी दे सकते हैं कि मैं ससुराल में बैठ के बर्दाश्त कर रही हूँ, हाँ। और हम ये नैरेटिव भी दे सकते हैं कि मैं ससुराल में बैठ के उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ। हाँ। ठीक है, ये नैरेटिव है जो मैंने अपने आप को दिया। अब अगर आप ये कहें कि मैं तो चिल लूं, जो मर्जी कहे मेरी सास, मैं तो कोई जवाब नहीं दे रही, ठीक है, तो ये बर्दाश्त नहीं है। एक्चुअली ये क्या है, ये एक तरह का कोपिंग स्ट्रेटजी है। आप कहें कि किसी को, और ये इतना उनको बुरा लगेगा जो अपना रोब जमा रहे हैं कि इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं अभी कह रही हूँ कि सालन तुमने मजेदार नहीं बनाया, वो कह रही है अच्छा चले मैं अगली दफा अच्छा बना लूंगी, मगर उसको कोई दिल पे बोझ नहीं आया। उसने कहा कि बस ठीक है। ये एक कोपिंग स्ट्रेटजी है कि मैं ये कह के गुजर जाऊं। आपकी बात बड़ी अच्छी है जी। वो कहते हैं ना, जैसा देखोगे वैसा नजर आएगा। ये बात बड़ी अच्छी है और ये बात हम सिखाते भी हैं, लेकिन इस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए वो दिमाग भी तो वैसा हेल्दी चाहिए ना, जो कि नहीं है। जो कि हमारा दिमाग तो काबिल छोड़ा नहीं है, जो कि जख्मी हुआ हुआ दिमाग, जख्म खाया हुआ दिमाग है। मतलब डॉक्टर वजाहत, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी ऐसी खवातीन जो कि लाइक 50+ 60+ जो होती हैं, आज मैं कहूँ ना कि आंटी माशा से आपका कपल बहुत अच्छा है, अंकल कितने अच्छे हैं, आपसे कितना कोऑपरेट करते हैं, तो अक्सर खवातीन कहती हैं कि बेटा तुम्हें क्या पता मैंने जिंदगी कैसे गुजारी है। मतलब घरों में भी देखे हैं ऐसी बहुत सारी खवातीन कहती हैं। एग्जैक्टली ऐसा ये जरूरी नहीं सिंपैथी लेने का दिल, हाँ, मैं यही आना था। ये जो विक्टिमाइजेशन है ना, इतना शौक है हमारे मुआशरे में। एक तरफ पावर का शौक है, एक तरफ ये कि मैं बेचारा, हमदर्दी, मैं बेचारा। ये भी तो बिहेवियर है ना, जहाँ से अटेंशन सीख करता है बंदा। लड़कियां भी, औरतें भी कर जाती हैं। ऐसा नहीं है। हमारे रिश्तेदार हैं, उनके घर में किसी को भी बेचारा बोलने की इजाजत नहीं कि हम कहते हैं ना वो बेचारी उसके साथ हो गया, वो बेचारा, वो तो पहुंच ही नहीं सका। वो बेचारे नहीं है, कोई बेचारा नहीं है। बेचारा तो कोई भी नहीं है। ये तो ऐसे ही एक बात है, ये तो हमारे मुंह पे चढ़ी बात है, वरना बेचारा तो कोई भी नहीं है। बेचारे तो घर के काम वाले नहीं है। अल्लाह ताला ने सबको एक कुव्वते खुद मुख्तार लेकिन एक रूल ऑफ द थंब रखना चाहिए बच्चों के साथ। रूल ऑफ द थंब ये है कि आज पूरा दिन जब गुजरेगा 24 घंटे, तो मैं आपकी 10 बातें मानूंगी, आप मेरी 15 बातें। अच्छा, मिस राना कॉलर हमारे साथ भी मौजूद है, और डॉक्टर वजाहत की बात जहाँ रुक गई थी डॉक्टर साहब ने कंटिन्यू करनी है। मेरे में बर्दाश्त है। ये बंदे देखें और डॉक्टर वजाहत से सीखे कि बंदों में बर्दाश्त होनी चाहिए। कॉलर हमारे साथ मौजूद है मिस राना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं तमाम लोग? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप बताइए। अच्छा, मैं थोड़े से बर्दाश्त के मामले में ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि एक्चुअली हम लोगों में अदम बर्दाश्त की वजह ये भी है आजकल की लड़कियों में, जिसमें मैं भी शायद शामिल हूँ, कि हम लोगों की जब शादियाँ वगैरह होती हैं ना, तो पुराने ज़माने की जो हमारी वालदा वगैरह थी वो ये कहती थी हम सब बर्दाश्त करते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे। अब जब हम नो डाउट के हम कुरान के लिहाज से भी फौरन बोलना शुरू कर देते हैं, बहुत बड़े हम मौलवी बन जाते हैं ना, कि नहीं इस्लाम में ये तो नहीं है, सास की खिदमत तो नहीं है, और हस्बैंड अलग से मकान भी दे सकता है। जी कुरान के अंदर लिखा है भाई, ये तो हम तो उसके ऊपर भी चल रहे हैं। हमारी वालदाएं पहले चचा ताया सबके खाने पकाते थे। आजकल हम ये कहते हैं कि नहीं मियाँ के लिए भी इतना हुक्म नहीं है, इसके लिए भी नहीं है।
और बच्चों को हम कहाँ तक रोकें, आप ये बताइए। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, अगर हम अपने घर से उन्हें तरबियत देते हैं, दोस्त बताते हैं उनके कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, लड़कियों को लड़कियां बता रही होती हैं तमाम सारी चीजें। अब माँ बाप का फर्ज अब ये बस रह गया है, जो मैं समझती हूँ कि हस्बैंड की हाँ में हाँ मिलाते रहो और करो वही जो अपना दिल चाहे, ठीक है, और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो। हाँ जी आप बिल्कुल ठीक है, हाँ जी आप बिल्कुल ठीक है। ये भी अच्छा कोपिंग मैकेनिज्म है। आप ठीक कह रहे हैं, ये स्ट्रोकिंग द ईगो। हाँ स्ट्रोकिंग द ईगो नहीं है, ये एक और चीज भी है। अच्छा आप हैं सॉरी, लाइन पे? इनकी बात खत्म नहीं हुई। अभी मैं डॉक्टर साहब के सामने कहती हूँ कि वो किसी ने कहा था ना कि आजकल अगर आप किसी से भी थोड़ी सी बहस करें लोग नाराज हो जाते हैं आपसे। अरे वो सही बात है कि वो कहते हैं ना, हमने आज सुबह हाथी हमारे घर के सामने जो है शाख पे बैठा था, तो आप बोले हाँ हमारे यहाँ भी रात को वही हाथी बैठा हुआ था ना। हाँ बिल्कुल, हाँ मैंने इसको उड़ते हुए भी देखा, बड़ा क्यूट उड़ता है। ये बात बिल्कुल सही बात है। ये हमें इतना ना अपने अंदर वाकई बर्दाश्त का मादा अब वो